हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज की इस वीडियो में हम 4 मई 2023 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैव कम टुडे, स्पेशली फ्रॉम द इंडियाज नेबरहुड मालदीव्स। देन वी हैव अ न्यूज़ अबाउट द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो आज हम चलते हैं थोड़ा नेशनल पेज पे, वहीं से न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट we will see the editorials जहाँ पे important US का एक report discuss हुआ है about the religious freedom. Now, before going to that, let's have some news from the front page which are important. The first is no union but center ready to ease living of gay couples. तो यहाँ पे ये जो डिस्कशन है सेम सेक्स मैरिज का, उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट में कि इट इज इंटेंडिंग टू फॉर्म अ कमिटी, एक कमिटी एस्टेब्लिश करना चाहती है, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। करंटली जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इंडिया के वो है राजीव गौबा। सो देयर विल बी अ कमिटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी टू कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स for addressing the genuine and human concerns faced by the same sex couples. For example, discrimination जो होता है या जिनको सर्विसेज नहीं मिलती है, ओके, जैसे कि बैंकिंग में हो गया, इंश्योरेंस में हो गया, यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ओके, तो वो एड्रेस करने के लिए, बट विदाउट डेल्विंग इनटू देयर पिटिशन फॉर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। मतलब सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन उसमें अभी नहीं जाना है, बट जो बाकी कंसर्न्स होती हैं उन्हें एड्रेस करना है। Okay, so it will require coordination among different ministries. Therefore, we have decided, subject to the court's approval, to form a committee headed by none less than the cabinet secretary. सबसे टॉप IAS ऑफिसर जो होते हैं उनके अंडर ये कमिटी बैठी। अब इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बिग पॉजिटिव मैसेज की तरह लिया हुआ है, that it will help in achieving wider social acceptance of the right of same-sex couples. Okay. Now the Supreme Court has said that the court now will go into determining whether same-sex couples have a right to cohabit together in a normal, peaceable environment in our country without facing any form of discrimination. Okay. Now there is one more information which you should know. The thing is that in which of the following case the homosexuality was decriminalized by the Supreme Court of India. So it is Navtej Singh Johar versus Union of India case. Now the next news coming from Go First ad. So Go First lands in National Company Law Tribunal with rupees 11,463 crore dues. तो यहाँ पे अभी जो नॉलेज है ये अभी बढ़ेगा जैसे जैसे हम न्यूज़पेपर कल का देखेंगे, परसों का देखेंगे। अभी जो है आप एक वन लाइनर की तरह इसको दिमाग में रखो कि कौन सा ऐसा एयरलाइन है जो अभी अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल पे गया है फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब कंपनी को वाइंड अप करना। So that is Go First. So Go First has approached the National Company Law Tribunal and it has sought the admission of its insolvency plea. उसमें जो कर्ज है इसके ऊपर that is rupees 11,463 crore, which includes dues to banks, financial institutions, vendors and aircraft lessors. Now यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये सिचुएशन कैसे हुआ तो देखिए, the airline has suspended flights for 3 days and announced its decision to seek insolvency proceedings before the NCLT. It has blamed that grounding of 25 aircraft due to delays in delivery of engines by a company called as Pratt and Whitney, okay, is the reason for its failure to meet its financial obligations. मतलब जो ऑपरेशन जब होगा ही नहीं तो रेवेन्यू जनरेट होगा ही नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। फाइन। अब देखिए, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इट हैड ऑर्डर्ड P&W to provide Go First 10 engines by April 27 and another 10 by December, but which it has failed to provide. The next is रशिया यूक्रेन क्राइसिस से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, that is Ukraine sent drones to target Putin. So Russian authorities have accused Ukraine that there was an attempt to attack the Kremlin with 2 drones overnight in an effort to assassinate President Vladimir Putin. अब हम चलते हैं बाकी न्यूज की तरफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी विल बी कमिंग टू दिस एडिटोरियल्स एक्सेट्रा व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे आफ्टर कंप्लीटिंग द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द क्लैट। अब क्लैट के हिसाब से देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है India slips in Press Freedom Index, ranks 161 out of 180 nations. So there is World Press Freedom Index which is released by Paris-based Reporters Without Borders. तो एक संस्था है Reporters Without Borders, पेरिस में है, वो एक इंडेक्स निकालती है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इंडिया की जो रैंकिंग है कौन से ईयर में, 2023 में, इट इज 161 आउट ऑफ 180 नेशंस। ये रैंकिंग जो है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ये स्लिप हुआ है। इन 2022 अगर आप इंडिया की रैंक देखेंगे तो इट वाज 150
ओके, बट नाउ इट हैज़ वेंट टू 161। अगर आप देखेंगे श्रीलंका, पाकिस्तान, तो सी यहाँ पे कुछ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट पाकिस्तान हैज़ फेयर्ड बेटर व्हेन इट कम्स टू मीडिया फ्रीडम बिकॉज इट वाज प्लेस्ड एट 150। श्रीलंका का भी काफ़ी अच्छा रैंकिंग है, 135th विच वाज 146 लास्ट ईयर। नाउ दिस इंडेक्स हैज़ बीन टॉप्ड बाय 3 कंट्रीज, नॉर्वे फॉलोड बाय आयरलैंड एंड डेनमार्क, एंड द बॉटम 3 आर वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का जो फ्रेंच नेम है, तो उसके हिसाब से इसका एक्रोनिम बनता है RSF। तो ये एक इंटरनेशनल NGO है, ओके, एंड इट्स एम इज टू डिफेंड एंड प्रमोट मीडिया फ्रीडम। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट पेरिस एंड इट हैज़ द कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशन। ओके, अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का एम क्या है, टू कंपेयर द लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम एंजॉयड बाय जर्नलिस्ट एंड मीडिया इन 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। अब what is press freedom according to RSF, that is Reporters Without Borders? So it is the ability of journalists as individuals and collectives to select, produce and disseminate news in the public interest, independent of political, economic, legal and social interference and in the absence of threats to their physical and mental safety. अब एक और न्यूज़ लेते हैं, प्रेस से रिलेटेड है, जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया हुआ है। ठीक है, नीचे आइए थोड़ा सा। अब ये न्यूज़ देखिए, अभी हमने प्रेस फ्रीडम के बारे में पढ़ा। अब दिल्ली हाई कोर्ट हैज समन्ड BBC, विकीपीडिया, इंटरनेट आर्काइव्स इन केस फाइल्ड बाय बीजेपी लीडर। अब ये केस क्या है? केस है BBC का एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसको पहले ही बैन किया हुआ था। ओके, इट इज़ अ 2-part डॉक्यूमेंट्री ऑन 2002 गुजरात रायट एंड इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फाइन। तो अब दिल्ली कोर्ट ने सम्मन जारी किया है BBC को, विकीपीडिया को, इंटरनेट आर्कीव को ऑन अ डिफेमेशन सूट। ओके, अब ये डिफेमेशन सूट इट हैज बीन फाइल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी लीडर विनय कुमार सिंह। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस गवर्नमेंट ऑन थर्ड एक्सटेंशन गिवन टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट संजय मिश्रा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट संजय मिश्रा, उनको एक्सटेंशन पहले मिला 2022 तक, फिर नवंबर 2023 तक, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पहले भी एक जजमेंट था कि इनको एक्सटेंशन जो है वो 2022 के बाद नहीं मिलना चाहिए, बट देन ऑल्सो द एक्सटेंशन वाज गिवन एंड द एक्सटेंशन वाज गिवन क्योंकि अर्लियर यहाँ पे लिखा नहीं है वो न्यूज़, चीफ विजिलेंस कमीशन एक्ट को गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। और इस अमेंडमेंट के अंडर ये था कि दैट जो इनका नॉर्मल टर्म होता है 2 years, उसके बाद भी 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है 1 year एट अ टाइम, मीन्स टोटल अप टू 5 years। ठीक है, ऐसा ही एक अमेंडमेंट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर भी किया गया था। ओके, तो उस एक्ट के अंदर CBI डायरेक्टर को भी अप टू मैक्सिमम 5 year तक का टेन्योर मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट एक्सटेंशन इज हैपनिंग 1 year एट अ टाइम। सो नाउ गवर्नमेंट इज गिविंग द पॉइंट दैट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एक्सटेंशन। तो अगर आप देखेंगे तो एक इंटरनेशनल बॉडी है विच इज रिलेटेड विद मनी लॉन्ड्रिंग एंड ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग टू कर्ब इट, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इनका एक पीयर रिव्यू मीटिंग होना है अक्टूबर में। ठीक है, ये मीटिंग होना है। तो ये मीटिंग में तो अब क्या होता है कि जो इंडिया में अगर आप देखोगे एंटी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सो इट इज़ द बॉडी टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर कौन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो एक कंटिन्यूटी बना रहे क्योंकि इंडिया का पीयर रिव्यू होने वाला है ऑलमोस्ट आफ्टर अ डिकेड। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू किया हुआ है। नाउ लेट्स कम टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज कमिंग फ्रॉम मालदीव्स। राजस्थान लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर कोस्ट गार्ड हार्बर इन मालदीव्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मालदीव्स जो है इट इज इन इंडियन ओशियन। ठीक है, इसका कैपिटल जो है वो है माले। कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, कि पेट्रोल वेसल्स और लैंडिंग एयरक्राफ्ट जो है इंडिया ने मालदीव्स को दिया हुआ है अंडर द इंडिया पॉलिसी विच इज कॉल्ड एज सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मालदीव्स का भी एक पॉलिसी है विच इज कॉल्ड एज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ओके, देन इंडिया ऑल्सो हैज दिस पॉलिसी विच इज कॉल्ड एज नेबरहुड फर्स्ट। अगर अब आप देखेंगे इंडियन ओशियन को, ठीक है ध्यान से, तो यहाँ पे चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। तो उसको काउंटर करने कैसे किया जा सकता है? तो जो लिटोरल कंट्रीज हैं, ओके, उनके मैरीटाइम कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो अंडर सागर, ओके, सो इंडिया हैज़ गिवन लैंडिंग एयरक्राफ्ट एंड पेट्रोल वेसल्स टू मालदीव्स।
ओके, तो वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मारिया दीदी। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज मालदीवियन काउंटर पार्ट मारिया दीदी, they have laid the foundation stone for the Maldives National Defense Force Coast Guard एकता हार्बर। अब यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो है डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड हार्बर एंड रिपेयर फैसिलिटी एट सीफावुरु। These are one of the biggest grant in project of India in Maldives. Then both the ministers they have agreed to explore additional avenues for cooperation including the areas of defense trade, capacity building and joint exercise. Now again coming to the इंडियन ओशियन, तो क्या सिर्फ मालदीव्स पे ही इंडिया फोकस कर रहा है? तो आप देखेंगे कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा द इनऑग्रल एडिशन ऑफ इंडिया एशियन मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया एशियन मैरीटाइम एक्सरसाइज ये चल रहा है। इसके अंदर भी दो फेज हैं, एक है हार्बर फेज जो सिंगापुर में होगा और एक है सी फेज जो साउथ चाइना सी में होगा, साउथ चाइना सी। Okay. The next is Jaishankar to hold talks with Chinese Russian ministers today. So now it is the External Affairs Minister S. Jaishankar is going to hold talks with foreign ministers. कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हुआ था, अब फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हो रहा है। तो यहाँ पे चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, ओके, एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द 8 नेशंस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन झांग मिंग दे आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी देखिए एक नाम जो फिर से दोबारा आया हुआ है, that is who is the Secretary General of Shanghai Cooperation Organization, so the name is Zhang Ming. Then he will also meet Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari. तो डिफेंस मिनिस्टर्स मीट में क्या क्या खास बात थी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए थे, ठीक है, बट यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैव कम। ओके, नाउ सी दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। SCO discussions on Afghanistan at the Goa meet will be significant, especially on the subject of recognition for the Taliban regime. इसको इंडिया ने अभी तक recognize नहीं किया हुआ है। The next news is from Environment Geography. IMD forecast a cyclone in Bay of Bengal next week. तो एक cyclone है जो emerge हो रहा है 6 मई तक ये होगा and it could form by May 9. तो it will develop by May 6th and the cyclone can take place by May 9. इसका जो नाम रखा गया है दैट इज साइक्लोन मोचा। दिस इज द नेम विच हैज बीन सजेस्टेड बाय येमेन बेस्ड ऑन द रेड सी पोर्ट। सो दिस विल डेवलप बाय May 6 एंड इट विल फर्दर इंटेंसिफाई। अगर आप देखेंगे कि जो साइक्लोन्स हैं उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, सी साइक्लोनिक स्टॉर्म 65 to 68 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज अ सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म विच इज ग्रेटर देन 222 किलोमीटर पर आवर। Then a severe cyclonic storm is 89 to 117, okay, which is just one step above a cyclonic storm. अगर आप देखेंगे इंडिया में जो साइक्लोनिक सीजन्स होते हैं वो एक तो मई का होता है, दूसरा अक्टूबर नवंबर का होता है। मतलब मई मतलब मानसून आने से पहले, अक्टूबर नवंबर मतलब मानसून जाने के बाद। अभी जो साइक्लोन मोचा है इट विल बी द फर्स्ट साइक्लोन टू फॉर्म इन दिस ईयर, ओके। The next is highly pathogenic bird flu virus puts center on alert. So housing one of the largest livestock reserves across the world, now India is at risk because of the ongoing outbreak of avian influenza, that is H5N1. Okay. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने लास्ट पेपर में कहा है कि that across the world the virus is being detected among wild birds and other species which makes the chance of mutation and becoming more harmful. अब यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज H5N1. इट इज अ हाईली पैथोजेनिक सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा एंड इट वाज डिटेक्टेड बाय ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, हेडक्वार्टर्ड इन भोपाल। ओके, तो यहाँ पे सैंपल्स कहाँ से मिले हैं? गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म एट बोकारो, झारखंड। द नेक्स्ट इज फ्रॉम वर्ल्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, यू शुड नोट इट, दैट इज द वर्ल्ड बैंक हैज कंफर्म्ड अजय बांगा एज द नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट ही इज गोइंग टू सक्सीड डेविड मालपास। सो ये दिस इज नेम वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन। अब वर्ल्ड बैंक जो है it is one of the specialized agency of the United Nations. It is also called as Bretton Woods sister along with IMF, and it is headquartered at Washington DC in USA. The next is the US Federal Reserve, which is the central bank of USA. It has raised the interest rate by a quarter of percentage point.
okay, that is 25 basis point, and signal it may pause further increase. okay, तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट यूएस में भी जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते जा रहा है. ओके, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, कोई भी फेडरल सेंट्रल बैंक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाती है? द मेन एम इज टू regulate the money supply, to decrease the money supply to control inflation. The next is Raisi praises Syria's victory in civil war despite sanctions. So, visiting Iranian President Ebrahim Raisi has hailed Syria's Bashar al-Assad for overcoming sanctions and achieving the victory in 12-year-long civil war. तो सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा था गवर्नमेंट फोर्सेस और अपोजिशंस के बीच में, तो यहाँ पे जो देयर वर डिफरेंट पार्टीज. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे दैट सीरिया कॉन्फ्लिक्ट इट हैज किल्ड मोर देन 5 लाख पीपल, डिस्प्लेस्ड मिलियंस एंड बैटर्ड द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट था ईरान का, और जो अपोजिशन फोर्सेस थी उनको सपोर्ट था सऊदी अरेबिया का. तो नेक्स्ट इज यूएन डिनाउंसेस तालिबान्स इंटिमिडेशन अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट इन अफगानिस्तान. हम जानते हैं कि यूएन में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है अबाउट द अफगानिस्तान. So now US has denounced Taliban's intimidation and attack on journalists. The next is the anatomy of a coronation. तो Kings Charles III and Camilla the Queen Consort, इनका coronation है May 6 को. अब coronation कहाँ पे है? वेस्टमिंस्टर एबी, जहाँ पे पिछले 900 साल से coronation हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रोसेशन स्टार्ट होगी बुकिंगम पैलेस से जो वेस्टमिंस्टर एबी तक जाएगी, और ये स्टार्ट होगा 11 बजे और ख़त्म होगा 1 बजे. एंड दिस कोरोनेशन सेरेमनी विल बी ऑफिशिएटेड बाय आर्क बाइशॉप ऑफ कैंटरबरी. ओके, उसके बाद एक परेड होगा. रॉयल फैमिली जो है इट विल वॉच अ फ्लाई पास्ट फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ बुकिंगम पैलेस. देन देयर विल बी अ कॉन्सर्ट एट विंडसर कैसल. ओके, अब हम कुछ नया कुछ पुराना देखते हैं. तो ये जो ब्रिटिश कोरोनेशन होने वाला है यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट मोनार्क्स रोल टुडे एंड लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर while being rooted in long standing traditions and pageantry. Okay, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो several of the chairs used during the ceremonies will be restored and reused, such as chairs of estate which were made in 1953 and used during Queen Elizabeth's coronation. उसके बाद जो throne यूज होगा for the ceremony, ये जो throne है it was built over 700 years ago and it was first used by Edward the Confessor. देन ये जो थ्रोन है इसको 152 किलो के पत्थर पर रखा जाता है जिसका नाम है स्टोन ऑफ स्कोनी और स्टोन ऑफ डेस्टिनी, विच हैज़ बीन यूज्ड बाय स्कॉटिश रूलर्स फॉर सेंचुरीज एंड इट वाज सीज्ड बाय एडवर्ड वन ऑफ इंग्लैंड इन 1296 बट लेटर इट वाज रिटर्न्ड. ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर थे, ही रिटर्न द स्टोन टू स्कॉटलैंड 700 ईयर्स लेटर एंड इट वाज ब्रॉट बैक टू वेस्टमिंस्टर एबी लास्ट वीक इन May 6. उसके बाद जो क्वीन कॉन्सर्ट है कैमिला वो प्लैटिनम क्राउन नहीं पहनेंगी जिसके अंदर कोहिनूर है, बिकॉज इट माइट, क्योंकि इनको ये पता है कि दैट वेयरिंग दिस डायमंड कुड कॉज ऑफेंस स्पेशली इन इंडिया. उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इस कोरोनेशन में जेविश, हिंदू, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट लीडर्स भी प्रेजेंट होंगे. अब यहाँ पे है कि पहले जो ब्रिटिश मोनार्क्स थे वो अपना टाइटल रखते थे डिफेंडर ऑफ द फेथ, मतलब एक फेथ को डिफेंड करना है. किसको? द प्रोटेस्टेंट फेथ विच इज एस्पाउस्ड बाय चर्च ऑफ इंग्लैंड. बट नाउ द टाइटल विल बी चेंज टू डिफेंडर ऑफ फेथ टू रिफ्लेक्ट द कॉस्मोपॉलिटन और मल्टी रिलीजियस सोशल बेस ऑफ यूनाइटेड किंगडम. उसके बाद आप देखेंगे ड्यूरिंग द कोरोनेशन द पब्लिक विल बी इन्वाइटेड टू स्वेयर एलिजियंस टू द किंग एंड हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स. तो इसको कुछ लोगों ने अपोज भी किया है, खासकर जो रिपब्लिक की डिमांड करते हैं, कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इट इज द किंग हेड ऑफ द स्टेट हु शुड शो एलिजियंस टू द सिटीजंस, नॉट द अदर वे अराउंड. नाउ कमिंग टू द इंडिया, हु विल बी प्रेजेंट फ्रॉम इंडिया? सो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर. जब क्वीन एलिजाबेथ II का फ्यूनरल सेरेमनी था तब वहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गई थी. उसके बाद जो लास्ट कोरोनेशन था क्वीन एलिजाबेथ II का, इट वॉज अटेंडेड बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. अब यूएस विल बी रिप्रेजेंटेड बाई फर्स्ट लेडी जिल बिडेन. तो प्रेसिडेंट जो बिडेन विल नॉट अटेंड. तो एक कन्वेंशन है अमेरिका का, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो स्किप करते हैं क्राउनिंग ऑफ अ ब्रिटिश मोनार्च. ओके, ये एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप जो है ना यूएस और ब्रिटेन के बीच में, ये थोड़ा उससे रिलेटेड है.
फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज ये भी प्रेजेंट होंगे। फिर किंग एंड क्वीन ऑफ भूटान, क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ जापान एंड द माओरी किंग एंड क्वीन, दे ऑल विल बी प्रेजेंट। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो नहीं होगा, दैट नेम इज मेघान मार्कल। ओके, बट इनके जो हस्बैंड है प्रिंस हैरी ये प्रेजेंट होंगे। रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेंज चल रहा है बिकॉज आफ्टर द रिलीज ऑफ अ बुक कॉल्ड स्पेयर। नाउ हु विल पे फॉर दिस कोरोनेशन? So definitely the UK government, that is UK taxpayer, they will pay for the cost of coronation, that is $100 million, $125 million और 100 million pound। 1953 में जब कोरोनेशन हुआ था तब खर्चा आया था 1.57 मिलियन पाउंड। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इस मोनार्की पॉपुलर, तो कुछ पोल्स हैं विच सजेस्ट दैट 60% ऑफ द एडल्ट्स वर इन सपोर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन while 26% said the country should have an elected head of state. The next is adapting to climate change to cost India rupees 85.6 lakh crore by 2030। तो जैसा कि हम जानते हैं कि climate change में हमारा एक गोल है that we have to become a net zero target achiever by 2070। तो उसके लिए हमारा जो खर्चा है that is rupees 85.66 lakh crore by 2030 for making adaptation to climate change। ये जो रिपोर्ट है इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए। तो एक हाईलाइट ये है कि दैट इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग द नेट जीरो टारगेट बाय 2070 वुड रिक्वायर एन एक्सेलरेटेड रिडक्शन इन द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय अबाउट 5% एनुअली। तो हमें जो अपना एमिशन इंटेंसिटी है उसको हर साल 5% कम करना पड़ेगा। एंड देन रिन्यूएबल्स शुड हैव द 80% रोल बाय 2070-71। उसके बाद जो ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है इट शुड बी एटलीस्ट 2.5% ऑफ द जीडीपी एनुअली टिल 2030 टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कॉज्ड बाय क्लाइमेट इवेंट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम हैव टू बी एडिक्वेट। अब हम आते हैं यूरोपियन यूनियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है। दे वांट टू रेगुलेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज दे हैं दे आर बिकमिंग ओमनी प्रेजेंट एंड देयर एल्गोरिथम्स आर मोर एडवांस्ड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। पर अब यहाँ पे यह है कि इसके कुछ मिसयूज भी हो सकते हैं। तो उस मिसयूज को रोकने के लिए द यूरोपियन यूनियन दे हैव कमिंग अप विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे that this legislation it was drafted in 2021 and the aim is to bring transparency, trust and accountability to artificial intelligence and then creating a framework to mitigate risk to the safety, health, fundamental rights and democratic values of the European Union। उसके बाद जो कुछ ethical questions हैं और जो implementation challenges हैं in various sectors like healthcare, education, finance, energy, तो इनको मिटिगेट करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैलेंस करना है कि ताकि जो ह्यूमंस को इससे हार्म ना हो। ठीक है, तो जैसे कि कल आप देखेंगे दैट दिस एक्ट ओके इट प्रोहिबिट्स यूजिंग टेक्नोलॉजीज इन द अनएक्सेप्टेबल रिस्क कैटेगरी विद लिटिल एक्सेप्शन। So it includes the use of real-time facial and biometric identification system in public space, systems of social scoring of citizens by governments leading to unjustified and disproportionate detrimental treatment। उसके बाद subliminal techniques to distort a person's behavior, technologies who can exploit vulnerabilities of the young or elderly or persons with disability। ओके, उसके बाद this act it lays substantial focus on artificial intelligence in high risk category, जहाँ पे प्री और पोस्ट मार्केट रिक्वायरमेंट्स होंगे डेवलपर्स के लिए और यूजर्स के लिए। ओके, नाउ इसमें जो फॉल हो रहे हैं दीज आर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल पर्सन्स, एआई यूज इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लॉ एनफोर्समेंट, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम्स। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कुछ और चीज़ें यहाँ पे टारगेट होने वाली हैं, दैट इज लॉ मेकर्स दे नाउ टारगेट द यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल बाय कंपनीज डिप्लॉइंग जनरेटिव एआई टूल्स such as OpenAI's ChatGPT or image generator। Now they have to disclose जो AI बनाते हैं any copyrighted material used to develop their systems, while the current draft does not clarify what obligations GPAI's manufacturers would be subject to। अब यहाँ पे some people they have welcomed the legislations, others have warned
कि अगर हम ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स लाएंगे तो इट विल स्टिफल द इनोवेशन। उसके बाद जो लॉ मेकर्स हैं एंड कंज्यूमर्स, दे आर सेइंग दैट दिस लॉ इज नॉट इनफ टू एड्रेस ऑल द रिस्क ऑफ एआई सिस्टम। अब हम देखेंगे दैट यूएस में जो है करंटली डज नॉट हैव कॉम्प्रिहेंसिव एआई रेगुलेशन। यहाँ पे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ब्लूप्रिंट निकाला है एआई बिल ऑफ राइट्स विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है इट आउटलाइंस द हार्म्स ऑफ एआई टू इकोनॉमिक एंड सिविल राइट्स एंड लेज डाउन 5 प्रिंसिपल्स फॉर मिटिगेटिंग दिस हार्म्स। सो इफ यू विल सी ओवर हियर कि अब हम चाइना में अगर देखें तो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना इट हैज़ ड्राफ्टेड द रूल्स and it has told the companies to provide positive energy and not to endanger national security or the social public interest. Now the next is Europe uses India, China to get Russian oil despite sanctions. So now we know that G7 countries earlier they proposed a price cap on Russian oil as $60. Now there has been a report by Center for Research on Clean Energy and Clean Air which has said that European Union, majority of G7 nations and Australia, they are indirectly obtaining oil from Russia through India and China. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि India and China they are buying crude oil of Ural grade from Russia, refining it and then sending it to European Union. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे that if this loophole can weaken the sanctions imposed on Russia. So there are 5 such countries, okay, where जहाँ पे रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फाइन, दिस 5 कंट्रीज आर चाइना, इंडिया, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरात एंड सिंगापुर। इन 5 कंट्रीज को क्या क्या कहा जाता है? लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज। फाइन, सो दे आर कॉल्ड एज लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज बिकॉज दे हैव ऑगमेंटेड देयर परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल, processed it and exported the products to countries enforcing sanctions on Russian oil. अगर अब हम देखें तो चाइना इट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स इंपोर्ट फ्रॉम 39.8 मिलियन टन टू 57.7 मिलियन टन आफ्टर इन्वेजन। फिर इंडिया का जो इंपोर्ट फिगर है इट हैज़ सर्ज्ड फ्रॉम 3.85 मिलियन टन टू 55.9 मिलियन टन पोस्ट द इन्वेजन। अब अगर हम देखें तो who is the largest exporter? So India was the largest exporter of oil products to price cap coalition countries since the implementation of the crude oil price cap, followed by China. Then who is the largest buyer? So Australia is the largest buyer. The next is present imperfect. तो एक report है, that is a report from the US Commission on International Religious Freedom, where it has said where it has said that India should be put in country of particular concern. तो ये यूएस कांग्रेस जो है उसने एक एक्ट पास करके इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है and it monitors the religious freedom in different countries. So it has said that India should be put into country of particular concern. So the report has highlighted promoting and enforcing religiously discriminatory policies. Okay, कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताया हुआ है that is issues dealing with conversion, interfaith relationship, wearing the hijab, cow slaughter, Citizenship Amendment Act and NRC. Then it has also said that these things have impacted minorities which include Muslims, Christians, Sikhs, Dalits and Adivasis negatively. Fine. Then there has been suppression of critical voices by intimidation, then demolition of property, detention, targeting of NGOs. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.